not very detailed, or you can say difficult chapter, very basic ideas about electric current. So the first topic is sources of direct current. Sources of direct current. The the first cell of the first source of electric current is a cell. Cell is a source of direct current. They provide direct current to the bulb. The current flows from positive terminal of the cell to the negative terminal through the bulb of the torch. The magnitude of the current is given by a cell remains constant for a sufficiently long time. When the cell gets discharged, it stops giving current and becomes useless. So we can define direct current as follows. Direct current is a current of constant magnitude flowing in one direction. So who provides direct current? Cell or a battery. You know what is a battery? Battery is combination of number of cells. When two or more cells are connected in series, it is known as a battery. You know a device which uses a battery? Oh, wait. Battery, not a cell. Okay, like that you are saying. Okay, ठीक है, होता है. मोबाइल में बैटरी होती है. It has got cells, which can be, yes, in your automobiles there are batteries. The battery provide the necessary current to operate the inner electronic components. There are bulbs inside. There is headlight. There is inside the car. There is air condition. There is stereo. So to operate everything, you require electric current, and that is provided by the battery. Okay. So that provides DC current or direct current. Direct current, you have to remember one thing. It is a current of constant magnitude. Constant magnitude means its value does not change. Flowing in one direction, that means its direction also does not change. So, is there any other type of current? One is DC, is alternating current. Can you tell me anything more about alternating current? The supply which we are getting over here is of alternating current. The magnitude and direction both of alternating current changes 50 times every second. That's why its frequency is 50 hertz, but it's not visible. If you look at the light, does it appear to be flickering to you? No, it does not. It appears to be steady because your eyes cannot notice the flicker 50 times in a second. But if you keep your mobile camera and see the light inside, you will see the flicker because its shutter speed is very high, and it higher than your eye. So it can notice those flickers which are happening in this light. That is due to alternating current. But alternating current is now not our topic, but you should have an idea what is alternating current. Alternating current is a current whose magnitude and direction changes many number of times per second. Direct current, the direction of direct current does not change, remains constant. Magnitude also does not change. Okay, the cell which you use in your TV remote, it is known as a dry cell. Why dry cell? Are there any wet cells also? Yes, there are. The battery in car has got some liquid in it, so they are not dry. But these cells are dry. Why? Because inside it, the chemical is in dry form. So that's why they are known as dry cells. The electrolysis, which is happening within the cell, it is happening in the moist form. Okay, so there is a moist paste of certain chemicals inside the cell. If you open and you should not do that. If at all you open and try to see, there is some powdery kind of a substance inside, and there is a graphite or a carbon electrode you will find inside, which is dipped in some chemical. Okay, but this cell is known as dry cell because it does not contain any liquid. But the other kind of cells are containing some liquids and they are not dry cells.
Okay, so a dry cell. No. Which maths paper? Yeah. No. I said paper solving. Maths and science both. So every time I'll give you a surprise. Math, science, anything. Whatever you are not expecting, I will provide you the same. So today is science. Best of luck. You can take help. It's not a test. It is a practice. So you can, if you have a textbook or reference book, you can find the answers and write. But there is a time limit. So you started at 3:15. You should be finishing within 2.5 hours. 2.5 hours means 5:45 is your end time, and then we will check the whole thing. I have the solutions. We'll check and get the marks. Start. Take help, no problem. So in a dry cell, brass cap projecting out at the center acts as the positive terminal of the cell. Have you seen that small cap? Yeah. And base of zinc case acts as negative terminal. The other side is flat, which is negative terminal. Okay. So in cell, what happens? Chemical energy changes into electrical energy when it sends current in a circuit. A cell basically consists of two conducting rods called electrodes at some separation placed immersed in a solution or a jelly. You see that moist paste which I was talking about? That's the jelly called electrolyte kept in a vessel. So there are two kinds of cells, primary cell and secondary cell or accumulators. Primary cells provide current as a result of irreversible chemical reaction. जो तुम्हारे रिमोट के अंदर सेल्स जाते हैं वो प्राइमरी होते हैं, जो यूज एंड थ्रो होते हैं बेसिकली, because once you use up all the chemical energy of primary cell, it gets converted into electrical energy, and that energy cannot be restored. मतलब chemical energy एक बार यूज हो गई तो हो गई, अब वो सेल तुम थ्रो कर दो गार्बेज में, उसका और कोई काम नहीं है. These cells are discarded after use when entire chemical energy in them has converted into electrical energy. Thus, these cells are use and throw type of cells and cannot be recharged. Depending upon the material of electrodes and electrolyte, we have different types of primary cells. Simple voltaic cell, Lagrange cell, Daniell cell, dry cell, etc. ये सारे अलग अलग टाइप के प्राइमरी सेल्स हैं जो यूज एंड थ्रो होते हैं. ठीक है, उनके वोल्टेज के ऊपर उनका नाम रखा गया है. जो हम यूज करते हैं ट्रिपल ए और डबल ए वाले जो साइज के होते हैं, थिन एंड थिक, दोज आर 1.5 वोल्ट्स. ठीक है, फिर थोड़े बड़े भी आते हैं जो साइंस प्रोजेक्ट में यूज करते हैं. 9 वोल्ट का बैटरी होता है वो, उसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर ही होते हैं, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप होता है उनका. सो दैट इज अ 9 वोल्ट का सेल. ठीक है, उनके यहाँ पे नाम दिए हैं, सिंपल वोल्टेक सेल, Lagrange, Daniell, dry cell, etc. सेकेंडरी सेल्स और अक्यूमुलेटर्स ये होते हैं रिचार्जेबल सेल्स. तुम्हारे मोबाइल का जो सेल है, सॉरी जो बैटरी है मोबाइल की, दैट इज रिचार्जेबल. सो दैट इज अ सेकेंडरी सेल. एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं बिकॉज दे एक्यूमुलेट द चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स. Secondary cells also provide current as a result of chemical reaction. In these cells, chemical reaction is reversible and so they can be recharged after use. After taking the electrolyte and electrodes in a vessel, the cell is first charged by connecting it to a direct current source. During charging, electrical energy changes into chemical energy and gets stored in the cell. When cell is used to send current in a circuit, the chemical energy changes into electrical energy. These cells can thus be used for a very long period because they can be recharged again and again. Lead or acid accumulator and nickel ferrous or alkali accumulators are the two types of secondary cells commonly used to provide low as well as high current. तुम्हारा जो मोबाइल का जो बैटरी होता है उसका नाम पता है तुम्हें? लिथियम आयन बैटरी, लिथियम Li.
लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं उसको। लेड एक्यूमुलेटर भी होते हैं, यस। आयन, ION, आयन, लिथियम आयन। We use lead accumulator as battery in a car as it is capable of giving high current. Low current rechargeable cells are widely used in toys and mobile phones. These cells are also called storage cells. So यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के डिफरेंसेस दिए हैं, 6 डिफरेंसेस दिए हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ इधर बताया है. सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज डिफरेंसेस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में. अभी तक जो भी हमने सेल्स के बारे में पढ़ा सब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है. ओके, देन द नेक्स्ट क्वांटिटी is electric current. We start with electric current. Generally, we should start with a charge, but then we start with electric current. Let me give you the knowledge which I have directly, rather than just reading, because that will take a long time and we have to finish 2 chapters. So we can directly okay. सबसे पहले I would like to tell you what is a charge. इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है चार्ज. ये चार्ज का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल क्यू. कुछ बुक्स में इसको स्मॉल क्यू भी लिखते हैं. क्यू है बेसिकली, इसका सिंबल क्यू होता है. चार्ज, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये पॉजिटिव नेगेटिव आर्बिट्री नेम है, इसको कुछ और भी हम बोल सकते थे, लेकिन हमने साइंटिस्ट ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया है. तो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century it was found that the elementary particle containing positive charge was protons. तुमने देखा है ना केमिस्ट्री में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वही. एंड नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. यहीं से तो नाम आया चार्ज, ठीक है. तो ये देखा गया है कि एक मेटालिक वायर जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कंडक्टर. कोई भी मेटालिक कंडक्टर, उसके अंदर क्या होते हैं पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये आते कहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऋषि? मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से? कंडक्टर ही बोलते हैं ना मेटल को. क्यों कंडक्टर बोलते हैं? एग्जैक्टली. वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करने देता है पता है? क्योंकि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो हमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव जो हो रहे हैं वो फील होते हैं, तो हमें शॉक लगता है, बिकॉज वो बहुत हाई स्पीड पे मूव होता है. सो वी परसीव इट एज अ शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक. तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्यों है मेटालिक कंडक्टर में? व्हाई मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एग्जैक्टली, प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट. योर metals contain how many electrons? हाँ, तो how many electrons are there? How many valence electrons are there in the outer shell of a metal? So these are known as excess electrons. ये excess electron है. अगर metal को मौका मिला तो वो donate कर देगा और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा वो. सो ये इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ high number of valence electrons in the outermost shell which are available to be donated, metals they just don't donate it like normally. Whenever they combine with other elements, only then they donate.
डोनेट कब करते हैं? ऐसे ही डोनेट कर देते हैं किसी को भी? नहीं, जब वो किसी के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तब जाके करते हैं ना डोनेट, ऐसे ही थोड़ी डोनेट कर देते हैं। तो मेटालिक वायर या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो है, आर दे डोनेटेड? No, they are not donated, they are still there. So these electrons which are there in the outermost shell are known as free electrons. ठीक है? So whenever you connect such a metallic wire with a battery or a cell, ठीक है, suppose this is a, ये किसका सिंबल है? सेल का सिंबल है। इसको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक वायर से, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा पता है? You will observe that these charges they start flowing from the higher potential to the lower potential of the battery. मतलब हायर लेवल टू लोअर लेवल ये चार्जेस फ्लो करने लगेंगे, और ये जो फ्लो है ना उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्या नॉन मेटल में इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है? इट इज रेयर। डोंट से इम्पॉसिबल बिकॉज इट्स रेयर, इट इज पॉसिबल। किस में पॉसिबल है? कार्बन, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो दैट, इट्स एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट जो होता है ना, तुम्हारे पेंसिल का जो निब होता है अंदर, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो नहीं कर पाएगा। सो मेटल मेटालिक प्रॉपर्टी तब तक एग्जिबिट करता है जब तक उसके पास मेटल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तभी वो कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। Conducting electricity is one of the very famous physical property of metal. It's a physical property, it's not a chemical property. Physical property because when electric current is passed through metals, no new substances are formed. Metal does not become something else after passing electric current. Metal remains metal. उसमें कोई chemical change नहीं आता। समझ में आया? So इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको क्या चाहिए? मेटल। मेटल के पास क्या होते हैं? चार्जेस। ये चार्जेस क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, और वो फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, चार्ज का सिंबल क्या है? मैंने फिर से यहीं पे जाता हूँ, क्यू, कैपिटल या स्मॉल, ये चार्ज का सिंबल है। ठीक है? अच्छा, तुम्हें केमिस्ट्री में ये भी याद होगा, मैंने आई थिंक कल ही बताया था, कल या परसों जब तुम आए थे केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? सर मैं ट्राई करूं? बोलो ना बेटा। सर 1.476 into 10 raised to minus 11 coulombs. 1.6 into minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलों। Minus 19 coulombs, sorry. 1.476 नहीं है, सिर्फ 1.6 है। ठीक है, और ये आगे माइनस की साइन है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होता है, लेकिन आगे क्या लग जाता है? प्लस। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे बोथ हैव द सेम चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये जब फ्लो करते हैं, प्रोटॉन तो फ्लो करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसको। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज को किस में मेजर करते हैं? क्या सिंबल है उसका? सी। क्यू तो चार्ज का सिंबल है, करंट का नहीं, चार्ज का। चार्ज पार्टिकल का सिंबल क्यू होता है। चार्ज को मेजर किस में करते हैं? कूलों। कूलम्ब नहीं बोलना, कूलों बोलो। कूलों। निकाल वो, निकाल, बहुत हो गया तेरे को, कोविड से बच गया। अरे निकालना, अभी बोल। कूलों, कूलों। ठीक है, द सिंबल ऑफ the symbol of Coulomb is capital C. The symbol of charge is capital Q or small q, and the SI unit of charge is Coulomb, whose symbol is C. तो ये हो गया चार्ज। अब चार्ज कोई पूछेगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, याद रहेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पता है क्या होता है? Very good. So when you rub two things together, like a glass rod and silk cloth,
द ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ बोथ बिकम चार्ज्ड. क्या होता है, क्यों चार्ज आता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, ट्रांसफर होते हैं. तो जो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो पॉजिटिव बन जाता है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो नेगेटिव बन जाता है. चार्ज, चार्ज बाय रबिंग. अब ये चार्ज फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, ये उधर ही है, ग्लास रॉड के ऊपर और सिल्क क्लॉथ के ऊपर. सो ये जो चार्जेस है ये स्टैटिक है. स्टैटिक मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में गिनता है. लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं. तो अब चार्जेस के बारे में समझ लिया तुमने. वो भी चार्जेस की वजह से ही हो रहा था, और ये भी चार्जेस की वजह से हो रहा है. बट यहाँ पे कंडक्टर आएगा पिक्चर में. वाई? बिकॉज कंडक्टर अलाउज द चार्जेस टू फ्लो थ्रू them. Okay, so suppose as I told you, I connect a cell or a battery across. You do wait. I'm recording. So suppose if I connect a cell or a battery across a conductor, and charges begin to flow, I get a new quantity which is known as electric current. Electric current whose symbol is I. इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल क्या है? I. तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. पर सेकेंड कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. अगर पर सेकेंड ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज हाई. अगर पर सेकेंड कम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज लेस. आई विल गिव यू एन आइडिया. सपोज यू हैव अ स्मॉल पेंसिल सेल, ड्राई सेल. You hold it with your hand. One finger is on the positive terminal, one finger is on the negative terminal. Do you get shock? Do you feel the electrons passing through your hand, your body? Is it difficult to hold it like that? So is there electric current? Yes, there is electric current. Of course there is. Because the cell is charged, it is new. You just took it out of a packet and you are holding it like that. And if you keep on holding it like that for a long time, and when you insert it in a remote or some device, you will see that it becomes useless. क्यों? क्योंकि सारा चार्ज फ्लो हो गया. कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में. थ्रू व्हाट? थ्रू योर हैंड. Why? Because human body is a good conductor of electricity. But the question is, did you feel the electric current? No. Why? Because electric current is the rate of flow of charge. So the rate of flow of charge must be very very less. बहुत कम चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा होगा तुम्हारे हैंड के थ्रू, जिसने तुम्हारे हैंड ने उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया. मतलब तुम्हारे हैंड को पता भी नहीं चला कि उसके थ्रू चार्जेस जा रहे हैं. सो इफ द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग आर वेरी लेस, करंट विल बी वेरी लेस. सो करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. किसी को शॉक लगा है कभी? So what is that? That feeling, that is, you just encountered or witnessed electrons running through your body, some part of your hand maybe. But if you keep on touching it for a long time, then they would pass through different parts of your body, and then you may get seriously hurt. So that can really hurt you, that can damage your nervous system. You know why does it damage your nervous system? It also have electrical impulses which brain every moment sends through all the parts of the body, which is extremely necessary for, you can say, the organs and their necessary functions. Like heart has to beat and pump blood. तो ये हार्ट को मैसेज कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है. तो ब्रेन कैसे दे रहा है ये मैसेज? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. Now if some external electrical impulse is given to our body, the whole nervous system gets into a shock mode. So you get a shock basically, and your body does not work. So you may get unconscious, or you may slip into coma, or you may die. So that is the direct damage done to your nervous system, electric shock.
okay, because electrons can flow through your body, that is you are experiencing electric current passing through your body. तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब Q मैंने अभी इसका ऐसा यूनिट बताया था, Q का क्या है, चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या है, कूलों, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, seconds. So coulomb per seconds is the SI unit of current, but we call it ampere, named after a scientist. So electric current is measured in amperes. ठीक है, एम्पियर जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल ए। इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिंबल क्या है, आई। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या है, कैपिटल ए। रिमेंबर, बहुत सारी क्वांटिटीज हो जाती है तो कंफ्यूजन होता है। चार्जेस का सिंबल क्या है, क्यू। चार्जेस का एसआई यूनिट क्या है, कूलों। कूलों का सिंबल क्या है, कैपिटल सी, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी। न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, हो सकता है, आई डोंट नो वेदर इट्स देयर और नॉट, बट you are studying this chapter right now, it's again there in class 10th in physics chapter number 8। तो मतलब ये कुछ ये सब काम में आएगा आगे, अगेन 11th में नहीं 12th में अगेन वापस आएगा। सो मतलब दिस चैप्टर विल बी देयर टिल लॉन्ग टाइम, सो इसलिए क्वांटिटी सारी तुम्हें याद करनी है। सो इलेक्ट्रिक करंट बता दिया मैंने तुम्हें। अब ओके, so now let's talk about the direction of electric current. So there are two directions of electric current, conventional direction and electronic direction. You know what is this? It's a circuit consisting of a cell and a light bulb. Now since there is no key or switch, we assume that the circuit is complete and the bulb glows, right? अब इसमें तुमने तुम्हारी बुक में कहीं भी देख लो, सर्किट में अगर तुम डायरेक्शन देखोगे करंट का, so that is always directed from positive to negative terminal. Initially scientists had no idea, electricity was discovered, but scientists had no idea about the direction of electric current, so they assumed it to be flowing from positive to negative. So this direction, positive to negative, is known as conventional direction. They have proved later. This is conventional. So what do you mean by the word conventional? Conventional word comes from an English word which is convenient or convenience. It's convenient to think that anything will flow from positive to negative. Positive being a synonym for higher level and negative being a synonym for lower level. हमेशा हम यही सोचते हैं ना, जनरली लॉजिक हमारे यही बोलता है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब कम, है कि नहीं? नहीं? हाँ तो बोलो ना। पॉजिटिव मतलब हायर लेवल होता है जनरली, और नेगेटिव मतलब लोअर लेवल होता है। पॉजिटिव मतलब हायर क्वांटिटी, नेगेटिव मतलब लोअर क्वांटिटी। अगर मैंने दो कंटेनर लिए और दोनों में मैंने वाटर को फिल किया है और दोनों को कनेक्ट कर दिया, एक में वाटर का लेवल ज्यादा है दूसरे में कम है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। कब तक फ्लो करेगा, जब दोनों में लेवल इक्वल नहीं हो जाता, और फिर क्या होगा, फ्लो बंद हो जाएगा। सो साइंटिस्ट ने यही सोचा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा होगी और नेगेटिव टर्मिनल पे चार्जेस की क्वांटिटी कम होगी, इसलिए चार्जेस कहां से कहां जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये सिंपल आइडिया
जो था वो बहुत कन्वीनियंट था समझने के लिए. इट वॉज वेरी कन्वीनियंट टू थिंक दिस वे. So without having any further research, scientists assumed that the charges flow from positive to negative. But then came the scientist J.J. Thomson, who discovered electrons. है ना, J.J. Thomson की डिस्कवरी. जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, this thing was you can say contradicted. क्योंकि साइंटिस्ट इस जे थॉमसन से पहले जो भी थे उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और एक्चुअली पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स तो फ्लो नहीं करते, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं. द वंस विच द पार्टिकल विच कैन फ्लो आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है. हाउ कैन दे go away from positive terminal? They should be coming towards the positive terminal. तो फिर जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. और इसको और एक नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक मींस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आया ये? सो इसलिए दो डायरेक्शन है. और जब भी तुम्हारी बुक में देखोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा. वाई? बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू नॉट टू चेंज द इंफॉर्मेशन. तुम सुबह किसी को मिलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो कि नहीं? वाई? बिकॉज इट्स अ कन्वेंशन. इट्स कन्वीनियंट टू से गुड मॉर्निंग रादर देन एनीथिंग एल्स in the morning, because you don't know what to say. That's why you say good morning. So it has become a convention. Convention मतलब पता है ना? Convention मतलब the things which you do regularly without any effort, effortless, right? So it is effortless to keep our circuit diagrams showing the direction of electron or electronic current or current, electric current from positive to negative terminal. But in reality, it is from negative to positive. So that is electronic direction. ठीक है. तो तुम जब भी तुम्हें एग्जाम में सर्किट बनानी है और उसमें करंट की डायरेक्शन दिखानी है, विच डायरेक्शन विल यू चूज? द कन्वीनियंट डायरेक्शन, द कन्वेंशनल डायरेक्शन. डोंट गो आउट ऑफ कन्वेंशन. When somebody asks you how are you, say I'm fine, even if you are not fine, because that the other fellow doesn't care. If you say I'm not fine, you know, I have 100 problems in my life, that guy says, why are you telling me all that? I just asked how are you, man. Just say I'm fine and जाना अपने काम पे. वो भी यही सोचेगा. So follow convention at times. ठीक है? समझ में आया? कन्वेंशन वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है इसके लिए. प्रूव हो गया जे थॉमसन की डिस्कवरी के बाद. दैट्स व्हाट जे थॉमसन डिस्कवर्ड एंड देन ही सजेस्टेड कि अभी सारी बुक चेंज करो, जितनी डिस्कवरी हुई सब चेंज करो, सब में एरो की साइन उल्टी करो अभी. तो सबने बोला यार मत करो यार, इतनी मेहनत हमारी वेस्ट जाएगी, इतनी सारी बुक प्रिंट हो गई है. तो एक काम करते हैं, तुम भी सही हो, तुम्हारा नाम इलेक्ट्रॉनिक करंट कर देते हैं जो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और ये लोग भी सही है, उनका कन्वेंशनल कर देते हैं. तुम भी खुश, वो भी खुश, सब खुश. कोई प्रिंट करने की जरूरत नहीं है. नहीं तो आज तक सारे बच्चों ने जो एग्जाम दी सब फेल हो गए, मतलब गलत बात होगी यार, ये ऐसा मत करो. तो जे थॉमसन ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स आई एम हैप्पी विद इलेक्ट्रॉनिक करंट. सो दैट्स द होल स्टोरी बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट. मैं ये पढ़ता तो मजा आता ना बहुत. नहीं आता, मुझे भी पता है. ओके, 1 एम्पियर. कुछ चीजें तुम्हें लर्न करनी है. मैंने तुम्हें करंट की डेफिनेशन बताई. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट का फॉर्मूला बताया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. I का SI यूनिट क्या है? एम्पियर. Q का कूलॉम, और टाइम का. सो 1 एम्पियर का डेफिनेशन बहुत इजी है. 1 एम्पियर is the current flowing through a conductor when a charge of 1 coulomb flows through it in 1 second. समझ में आया?
क्या? 1 ampere is the amount of current flowing through a conductor when a charge of 1 coulomb flows through it in 1 second. जब 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकंड में कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो हम बोल सकते हैं कि करंट 1 एम्पियर है. अब वो लोग ने ये पता लगाया है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू दिस रिलेशन सेपरेटली. तो जिसको भी शॉक लगा है और जिसको याद है वो लोगों के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन. सपोज तुम्हें 1 एम्पियर का शॉक लगा है, ठीक है. नाउ I'm interested to find number of electrons in 1 coulomb. Number of electrons in 1 coulomb, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है. So 1 electron has got a charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So how many electrons will have a charge of 1 coulomb? मैं क्या करूँ पता है? यूनिटरी मेथड, गुड ओल्ड यूनिटरी मेथड, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास 1 कूलॉम का चार्ज होगा. क्योंकि अगर मुझे शॉक लगा और वो शॉक 1 एम्पियर का था तो मतलब मेरे हाथ से 1 कूलॉम चार्ज गया. 1 कूलॉम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स. सो आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन and I get 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19, which on solving you get 1 by 1.6 into 10 raised to 19, which on further simplification 6.25 times 10 to the power 18 electrons. मतलब 6, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन तुम्हारी बॉडी से गुजरा है 1 सेकंड में, इसलिए तुम्हें झटका लगा. लगेगा ही, बट नेचुरल यार. इलेक्ट्रॉन्स तो देखो कितने सारे हैं, और वो अगर 1 सेकंड से ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे तुम्हारे बॉडी से पास होने वाले. एंड दैट्स व्हाई यू फेल्ट इट. सो 1 एम्पियर इज अ एप्रिशिएबल करंट विच यू कैन फील. इफ द करंट इज हायर you will feel more shock to your body, to your nervous system. That's why you should be very careful while handling electrical appliances and equipments, ठीक है, because the number of electrons. So these are the number of electrons in 1 coulomb. ओके, इसके बाद वो लोग ने सर्किट डायग्राम में यूज होने वाले सिंबल्स की बात की है. तो ये सारे अलग अलग टाइप के सिंबल्स, और सिंबल्स तो नहीं है खैर, डिवाइसेस के पिक्चर्स बनाए. ये पिक्चर्स का कोई तुम्हें यूज नहीं है. नोबडी विल आस्क यू इन एग्जाम टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्टोरेज सेल और रियोस्टैट और एमीटर. ये इसका फिगर कोई नहीं पूछता है, इसके सिंबल पूछे जाते हैं, ठीक है. तो सिंबल ये रहे, देखो सेल दिख रहा है तुम्हें बुक में अपने, यहाँ भी है सेल. एक longer line, एक shorter line. Longer line represents positive terminal, shorter negative, and 2 lines which represents the electrical the conductor. बैटरी, जब 2 या 2 से ज्यादा सेल एक ही साथ कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन इट्स अ बैटरी, ठीक है. दिस इज अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स. एसी सोर्स, आई जस्ट टोल्ड यू एसी सोर्स कहां पे होता है. हमें जो सप्लाई मिलती है दैट इज एसी सोर्स. द सप्लाई विच वी गेट इज एसी सोर्स, ठीक है. उसका सिंबल बहुत ही यूनिक है. उसके सिंबल में देयर इज दिस सिमिलैरिटी का साइन है. सो यू गाइस डोंट नो व्हाट इज सिमिलैरिटी. कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर जो साइन होता है ना, वैसा वाला साइन है. ये साइन आया कहां से पता है? कहां से आया? अच्छा अच्छा, क्यों क्यों किया ऐसा? एस फॉर सिमिलर. अच्छा, तो यहाँ सिमिलैरिटी का क्या काम है मैडम?
this is how, or this is what an AC current looks like. Its magnitude continuously increases, becomes maximum, then continuously decreases, becomes zero, then continuously increases and becomes maximum in the opposite direction, then continuously decreases and becomes zero, and this goes on repeating. मतलब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है और उसकी वैल्यू भी कम और ज्यादा होती रहती है। और ये होता है, ये वन साइकिल है, इसको बोलते हैं वन साइकिल। ऐसा एक साइकिल कितनी बार होता है पता है? हाउ मेनी टाइम्स डज दिस रिपीट? 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। इसलिए हमारा जो एसी सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। तुम सोचो कि हर्ट्ज तो पढ़ा हुआ है मैंने साउंड में, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। यस, सो एनी पीरियोडिक क्वांटिटी, पीरियोडिक क्वांटिटी मतलब जो अपने आप को चेंज करती है इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे साउंड वेव्स भी पीरियोडिक थे। कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो पीरियोडिक क्वांटिटी है। यहाँ भी ऑल्टरनेटिंग करंट में कंटिन्यूसली हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, इसलिए ये भी पीरियोडिक क्वांटिटी और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हर एक पीरियोडिक क्वांटिटी के साथ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब एसोसिएटेड होता है जो हमने साउंड में पढ़ा था। द सेम थिंग। So 3 things in physics have got the same nature. That is wave nature. That is, one is your sound waves. Other is AC current, alternating current, and one more is there, which is pendulum. The vibrations of pendulum or spring. They also have got this kind of periodic nature, where they keep on repeating the same, you can say, kind of motion throughout time. इसके बाद आती है की. So these are all the symbols of a key. I'll explain one by one. प्लग की, प्लग की क्या होती है? प्लग की में कैसा प्लग होता है जिसको अगर एक वो छोटा सा एक कैविटी होता है, उसके अंदर अगर इंसर्ट करो प्लग को तो सर्किट ऑन हो जाती है। प्लग को निकाल दो तो सर्किट ऑफ, ऑन ऑफ, प्लग की। तुम बोलोगे सर मेरे घर पे तो प्लग की नहीं है। बट नो, दैट्स या बट नो नो नो, नहीं नहीं, वैसा मत लो यार, कार तो अलग है, दैट इज फॉर सिक्योरिटी मैन, दैट्स नॉट जस्ट एनी चाबी, कोई भी चाबी डालने से हो जाएगा, दैट इज फॉर सिक्योरिटी। स्विच, स्विच पता होगा, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में वी यूज, अच्छा हमारे घर पे हम क्या यूज करते हैं? ऑन ऑफ, है ना। फिजिक्स में ऑन मतलब क्लोज्ड अजीब है ना, एंड ऑफ मतलब ओपन। की इज क्लोज्ड मतलब की स्विच ऑन है, की इज ओपन मतलब स्विच ऑफ है। फिजिक्स थोड़ा अजीब है ये। हाँ, टैपिंग की, दिस इज ऑल्सो वन मोर टाइप ऑफ की। तुम्हारा डोरबेल है ना, डोरबेल जिसमें स्प्रिंग होती है, इफ यू रिलीज इट इट्स ऑफ, वो टैपिंग की है, ठीक है। ये सारे क्लोज पोजीशन है, ओपन पोजीशन। अच्छा, इसके बाद है रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब तुम बोलोगे सर ये रेजिस्टेंस का है, ये क्या है? ये तो नया है, ये पहले नहीं सुना है। किसी ने सुना है रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? बड़ा सिर हिला रहे हो, बताओ अब तुम्हें। हाँ, हीट होता है। अच्छा अच्छा, और क्या करता है? हीट करता है, हीट देता है अपने को। एक्स्ट्रा रहता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी रहता है। अच्छा, अरे आई एम जस्ट इंटिमिडेटिंग यू, आई एम जस्ट, यू आर राइट एक्चुअली, तेरे पास है आइडिया थोड़ा। सो बेसिकली रेजिस्टेंस वायर और रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सारे जो डिवाइसेस है ना, दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट।
करंट की अमाउंट को कंट्रोल करता है ये। अगर रेजिस्टेंस, अभी ये वर्ड रेजिस्टेंस, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? नहीं नहीं बोलो, सिर्फ सिनोनिम यार, वही तू बता रहा है, हिंदी में बता दे। रोकना, रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। हाँ सही है ना, रेजिस्टेंस। तो ये किसको रोक रहा है? करंट को रेजिस्ट कर रहा है। कर एक्सेस बोल सकते हैं, या फिर हाँ बोल सकते हैं। अगर नहीं 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 नहीं, तुम अलग मत जाओ, वैसा नहीं है। ये क्या बोल रहा है पता है? कि अगर करंट को रेजिस्ट करेंगे ना तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना। हाँ सही है, यू आर राइट। मतलब ये जितने भी रेजिस्टर्स है, दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, बट इट्स नॉट मैंडेटरी एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज। ठीक है, जैसे एक सर्किट में मैंने बल्ब लगाया, अब मैंने सर्किट को ऑन किया, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, और वो बल्ब के थ्रू जा रहे हैं। बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो बल्ब को अगर तुम थोड़ा सा पास जाके ऐसे, डोंट टच इट डायरेक्टली, जस्ट गो नियर इट, यू विल फील वार्म. So that means some amount of electrical energy is getting converted into light and some into heat. But do you actually require that heat? Exactly, laptop, mobile का charger, हाँ सब कुछ सारे, yes exactly, you are right. That means जहां जहां इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, हाँ, लेकिन तुमने वो ये जो वायर्स है, ये जो वायर्स जा रहे हैं, उसको तुम पकड़ो तो गर्म होता है क्या कभी? नहीं, अप्लायंस हीट अप हो जाते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस मिलता है ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट मुझे बताओ, इज दिस हीट एनर्जी ऑलवेज यूजफुल? जैसे बल्ब गर्म हो रहा है, तो तुम वो गर्मी में क्या रोटियां सेकते हो क्या? तो क्या काम है वो गर्मी का? बल्ब का बात करना, बल्ब की हीट का क्या काम है? सो दैट इज अ डिग्रेडेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारे काम में नहीं आती। सो रेजिस्टेंस इज नॉट ऑलवेज लाइक रिक्वायर्ड, it is a byproduct also, and it is an unnecessary byproduct most of the time. Sometimes we require resistance in the circuit to obtain heat, like you called electric heater. cold regions में घर के अंदर heaters होते हैं, तो heater क्या करते हैं? they give heat energy, they convert electrical energy into heat energy and they heat up the room to increase the temperature, which is of course for our comfort, that is required. But the bulb, the tube light, the appliances, do they whatever heat they produce, is it useful to us? No. So all kinds of heat are produced due to resistance. Resistance is the main cause behind it. But here I'm going to give you an example of resistance which we use for our benefit, for limiting current. किसी को पता है एग्जाम्पल? अच्छा क्या? हाँ हाँ, क्या होता है? क्या होता है बोलना है यार, मेरे को भी जानना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता तू क्या बोल रहा है। मेरे फ्रिज पे तो नहीं है। करंट ठीक करने के लिए वो स्टेबलाइजर होता है, वो रेजिस्टर नहीं है, वो स्टेबलाइजर है वो। किसी और को कोई आइडिया? सब हाँ यस, क्या? फैन का रेगुलेटर। सब यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं फैन का रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम क्या है? फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करना। Exactly. So if you can control the amount of current passing through the fan, you can control its speed. More current passing through the fan, higher speed it will attain. Less current, lower speed it will attain. So if you want to decrease the speed, what you will do? तुम उसका जो रेगुलेटर है उसको तुम स्पीड को 1 पे कर दोगे। स्पीड जब 1 पे है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस हाईएस्ट है रेजिस्टेंस। और जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। सो दैट इज अ स्विच और अ रेगुलेटर फॉर रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस। और यहां पे जो तुम्हारी बुक में जो
सेम फंक्शन वाला एक कंपोनेंट दिखाया है जिसको नाम है रियोस्टैट। रियोस्टैट रियोस्टैट वही काम करता है जो हमारा फैन का रेगुलेटर करता है, सिर्फ ये दिखता थोड़ा अलग है। इट्स अ बिग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है। सो what you do is you take this instrument, and with the knob A or terminal A of this instrument you connect your live wire. कैसा था केमिस्ट्री? और कल कौन सा है? क्या करोगे आज तुम? वेरी गुड, सिट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तो रेडी नहीं है तो रिवाइज कर, जब भी होगा तो आई विल गिव यू। ठीक है, सो टर्मिनल ए पे क्या है? तुम्हारा लाइव वायर है। लाइव वायर को कनेक्ट कर रहे हो तुम, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लाइव वायर। और दूसरा जो टर्मिनल है उसको तुम सी पे कनेक्ट कर दो, सी पे। ठीक है, अच्छा, ये सी जो टर्मिनल है ऊपर जो रॉड पे लगा है, वो रॉड दिख रहा है तुम्हें? वो ब्रास का रॉड है, इट्स अ कंडक्टिंग रॉड। उसके ऊपर एक जॉकी है। ये जॉकी क्या करता है? जॉकी स्लाइड करता है वो ब्रास रॉड के ऊपर। अच्छा, जॉकी में एक नॉब है, वो कनेक्टेड है ये कॉन्स्टेंटाइन वायर के साथ। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन जॉकी को मैं यहां पे रखता हूं, यहां पे, तो क्या होगा? करंट ए से आएगा, ए से आके वो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन वायर में, और जहां मैंने जॉकी रखी है वहां से करंट ब्रास रॉड में एंटर करके सी से बाहर चला जाएगा। मींस अ स्मॉल लेंथ ऑफ कॉन्स्टेंटाइन वायर इज कनेक्टेड एज रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मैं जॉकी को स्लाइड करूंगा टूवर्ड्स राइट। ठीक है, अब मैंने जॉकी को रख दिया यहां पे, तो अब क्या होगा? करंट आएगा ए से, वो कांस्टेंटाइन वायर में 2-3 चक्कर घूमेगा और फिर वो जॉकी के थ्रू ब्रास रॉड से बाहर निकल जाएगा। तो नाउ द लेंथ ऑफ कांस्टेंटाइन वायर which is introduced in the circuit has been increased by moving the jockey to the right side. Means by sliding the jockey I can change the length of Constantine wire, which is a resistance wire connected in the circuit, by sliding the jockey. What if I move the jockey to the extreme right? Resistance would be maximum or minimum? Maximum, क्योंकि now huge length of Constantine wire has been introduced in the circuit. Constantine wire की जितनी लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. So by sliding that jockey you can change the resistance. That's how it works. हमारे पास तो इससे भी इजी है तरीका, रेगुलेटर घुमा दो, कोई स्लाइड करने की कुछ जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ ओल्ड मेथड. जब पहले रेजिस्टर्स या वेरिएबल रेजिस्टर्स या रियोस्टैट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये हुआ था. दिस इज द ओरिजिनल डिस्कवरी which has been now changed into your fans regulators. ठीक है, सो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा है, जिगजैग लाइन जैसा दिखता है ये, आर रेजिस्टेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जिगजैग लाइन है. ये है रियोस्टैट, आर एच. यहाँ पे एक जॉकी है ऊपर, तुम्हें दिख रहा है आधा कलर ब्लू है और आधा व्हाइट है, मतलब, और उसके बाद जॉकी से निकल जा रहा है. और यहाँ पे ये वाला पार्ट ब्लू है और ये व्हाइट है. बी से करंट जा रहा है और सी से निकल जा रहा है. सो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कौन सी सर्किट में कनेक्ट करना है, यू कैन एडजस्ट द रियोस्टैट. हाँ, तुम बी और सी में भी कनेक्ट कर सकते हो, ए और सी में भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा फंक्शन क्या है. एक ही सर्किट, कोई मतलब नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है. उसके बाद आता है एमीटर. व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट. तुमने देखा होगा छोटा सा डिवाइस आता है, आई विल शो यू ऑन गूगल.
Have you seen such devices in lab, physics lab? I'm sorry. ऐसे डिवाइस देखें जिसमें डायल होता है ऊपर? नहीं देखे तो फिजिक्स के लैब में तुम्हें देखने मिल जाएंगे। अगर नहीं देखे तो कोई वीडियो में तो डेफिनेटली तुम देख पाओगे इसको। ठीक है, सो हाउ टू यूज एन एमीटर अगर यूट्यूब पे डालोगे दे विल शो यू हाउ टू यूज इट। इसमें हम लोग, इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, जनरली दो ही होते हैं। यहाँ पे 3 टर्मिनल वाले एमीटर भी है। जनरली ये वाला जो एमीटर दिख रहा है तुम्हें, दिस इज स्टैंडर्ड। इसमें एक ब्लैक है, एक रेड है। ब्लैक और रेड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आने वाला जो वायर है उसको कनेक्ट करना है, और नेगेटिव टर्मिनल वाला वायर रेड पे कनेक्ट करना है। एंड यू कैन, if you close the key, you can see the amount of current flowing through the circuit. So what does it do? It measures the electric current. Ammeter क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। रिमेंबर दैट। ठीक है, एमीटर का सिंबल क्या है? एमीटर का सिंबल देखो, एक सर्कल है जिसके अंदर लिखा है कैपिटल ए, दैट्स एमीटर। वोल्ट मीटर होता है वैसे ही। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। बट डू यू नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? You will learn it in the second part of this chapter. So don't worry, I'll teach you about that. So potential difference, in short, it is known as voltage. तुमने सुना होगा वोल्टेज ज्यादा है या वोल्टेज कम है। वोल्टेज इज एक्चुअली द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिना वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होता है। सो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। वोल्ट मीटर भी एमीटर जैसा ही दिखता है, और उसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और उसका सिंबल है सर्कल के अंदर कैपिटल वी, वोल्ट मीटर। देन देयर इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है which can do two things. One, it can measure very weak electric current. सबसे छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर लेगा। जैसे तुम्हारा पेंसिल सेल होता है, 1.5 वोल्ट का बैटरी या सेल, उसको अगर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया तो इट विल डिटेक्ट इट्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऑल्दो यू होल्डिंग इन योर हैंड कैन नॉट डिटेक्ट, but galvanometer will be able to detect. It is made in such a way. And galvanometer also tells you about the direction of electric current. कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो बताता है गैल्वेनोमीटर। सो इट गिव्स यू टू थिंग्स, वेरी फीबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स वैल्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर। और उसका सिंबल सिंपल है, सर्कल के अंदर कैपिटल जी। Then there is load. Load is nothing but electric bulb or electric heater. Normal electric? Yeah, you can find it. Like your hardware shops, right? Yeah, you can get it. But nowadays they don't have this kind of dials and all. They are digital. ठीक है, सो डायरेक्टली तुम अटैच करोगे, तुम्हें डिजिटल मतलब नंबर्स में लिख के आएगा वहां पे डिजिटली, और वो दिखाएगा तुम्हें कितना है वैल्यू। ठीक है, यू कैन फाइंड इट। यू वांट टू बाय? नहीं, खरीद लो, खरीद के हमको दिखाना कैसा है। अरे कोई भी इलेक्ट्रिशियन के पास भी रहता है, दे हैव इट। ऑरेंज कलर का या ऐसा येलो कलर का छोटा डब्बा होता है, एंड दे हैव गॉट टू, वैसे टच करके चेक करते हैं। इवन दोज हु रिपेयर द लैपटॉप्स एंड पीसीज, उनके पास भी होता है, दे ऑल्सो हैव इट। ओके, simple electric circuit. In our daily life, we use a torch in which a cell or combination of two or more cells is connected to a bulb. This is the simplest electric circuit. Simplest electric circuit में एक switch होती है, एक cell होता है, एक bulb होता है। ठीक है, इसको हम लोग और complex बना सकते हैं। Figure 9.12 is the more complex electric circuit. ठीक है, so you see a cell, cell के जो negative terminal में
What, you solved the whole thing? Not possible, man. It is just 1 hour and 15 minutes. तूने पूरा लिखा पेपर, 3 घंटे मिलते हैं तेरे को एग्जाम में. हाउ कैन यू डू इट सो क्विकली? रुक जाओ, उसका सोल्यूशन तेरे पास मोबाइल है? आई सेंड यू द सोल्यूशन. चेक करके मेरे को दिखा, मैं चेक करूंगा फिर. ओके, सो सेल के साथ लेफ्ट राइट साइड में की है, क्लोज्ड है, कनेक्टेड है, और लेफ्ट साइड में एमीटर है. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है, एमीटर में जा रहा है, एमीटर के थ्रू जा रहा है बल्ब में. तुम देख रहे हो बल्ब के नीचे क्या कनेक्टेड है? वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज. और यहां से वायर जाता है रियोस्टैट में. रियोस्टैट क्या करता है? हमने पढ़ा था, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ करंट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस. ठीक है, so this is your complex kind of electric circuit which can be asked in exam. Right now, okay, you have insulators and conductors. Insulators do not allow the electric current to flow through them, but why? They don't have free electrons. They are mostly made up of non-metals. बंद करूं? Okay, so insulators do not allow the electric current to flow through them. They have no free electrons. Example क्या होंगे इसके? रबर, प्लास्टिक, वुल, वुड एंड सो ऑन. बहुत और भी, ग्लास जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नॉन मेटल है, वो सब मोस्टली दे आर इंसुलेटर्स. व्हाट अबाउट ग्रेफाइट? इट्स एन एक्सेप्शन, इट इज अ कंडक्टर. कंडक्टर्स allow the electrons to flow through them because they have got free electrons in them. ठीक है, so human body, conductor. Tap water, not pure water, tap water with impurities. Acidulated water is conductor. Sea water is conductor. Mercury is conductor. All metals are conductor mostly, because it does not have free charges or charge particles in them. Once you add some impurity, it starts conducting because of the presence of charge particles. नहीं, ट्राई करोगी? नहीं करो ना, नहीं करो. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. सिर्फ क्लोज एंड ओपन सर्किट है, दैट वी ऑलरेडी नो. मतलब ओपन एंड क्लोज मींस अगर ऐसा ब्रेक हो गया है तो ओपन सर्किट है, इनकम्प्लीट. ठीक है, और stupid people have put metal wire and thread over here, and they are asking us whether it is closed or open. Of course open. So very basic information, और मैंने अपने हिसाब से भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है तुम्हारे साथ. बट नाउ आई एम गोइंग टू कम टू सम, यू कैन से, टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें एक रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, बट एक चीज हमने डिटेल में नहीं पढ़ी है, जैसे दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. So I would like to start with the word potential. What do you mean by the word potential? Tell me. Sorry? Yes. Capacity. Potential का मतलब होता है capacity. Potential difference means difference in capacity. ठीक है, मैंने तुम्हें एक डायग्राम बताया था जिसमें 2 बकेट थी, एक में ज्यादा पानी था, एक में कम था. तो इसको भी हम ऐसे ही देख सकते हैं ना कि 2 वेसल है, एक में ज्यादा कंटेंट है, एक में कम है कंटेंट. तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? जिसका कंटेंट ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें ज्यादा पानी है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है. मतलब whenever we are talking about difference in capacity, it directly leads us to the flow.
टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो. फ्लो कब होती है चीजें? फ्लो तभी होती है जब डिफरेंस इन लेवल होता है, डिफरेंस इन कैपेसिटी होती है, डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है. तो हमको क्या चाहिए? फ्लो. किसका फ्लो? चार्जेस का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट. इफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन कैपेसिटी ऑफ द चार्जेस. मतलब अगर मुझे किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा. विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस तो है. कैन आई से दैट चार्जेस आर नॉट देयर? चार्जेस आर देयर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ कंडक्टर, बट आर दे फ्लोइंग? No. To make them flow, I have to push them. That means I have to make or create a level difference, a difference in level, which can be achieved using a cell or a battery. So cell or a battery क्या करता है? वो चार्जेस को नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में सेपरेट कर देता है. नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है. तो इलेक्ट्रॉन्स के लेवल में जैसे ही डिफरेंस हुआ और जैसे ही ऐसी बैटरी या सेल को मैंने वायर में कनेक्ट किया, वो उसको उनको क्या मिल जाएगा? रास्ता मिल जाएगा और वो फ्लो करने लगेंगे थ्रू द वायर. तो ये क्यों हुआ? बिकॉज मैंने बैटरी अटैच किया और बैटरी ने क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस. और ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम है जो मैंने तुम्हें बताया अभी, दैट इज वोल्टेज. मतलब बैटरी क्या सप्लाई करता है? वोल्टेज. वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. तुम्हारा ये जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या है? एसी सोर्स. वो क्या प्रोवाइड करता है? 220 वोल्ट्स ऑफ एसी सप्लाई. वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है. सिंपल. यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस इन कैपेसिटी और लेवल टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो सी ये सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लोग ने दिए हुए हैं. हायर लेवल, लोअर लेवल. ठीक है. हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. सो a conductor having an excess of electron is said to be at a negative or lower potential, while having a deficit of electron is said to be at a positive or higher potential. फिर से इसको समझ लेना. जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो लोअर पोटेंशियल है, माइनस. और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है वो हायर पोटेंशियल है, प्लस. और चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं? प्लस टू माइनस. और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं? माइनस टू प्लस. माइनस टू प्लस वाले फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू मेक दिस फिगर. ये वाला स्फीयर बनाओ. हाई पोटेंशियल लिखो, प्लस 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 प्लस, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पॉजिटिवली. बीच में वायर बनाओ. फिर और एक स्फीयर, लो पोटेंशियल, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज नेगेटिवली. और उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन दिखाओ, फ्लो ऑफ करंट का. यहां से तुम्हारा मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा.
Did you make it? कहाँ गया वो? Where did it go? Did you do something? Automatically? अच्छा, ठीक है. इसमें जो रीज़न था कि फोर्स का परपेंडिकुलर है और एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो सर इसमें परपेंडिकुलर में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे और एक में उन्होंने 2 ही ऑप्शंस थे, तो इसमें नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये था, पर पॉजिटिव में इधर उन्होंने नेगेटिव दिया है, 0 होना चाहिए. मैं करता हूँ, चेक करता हूँ. सर उसको क्या करना है? कुछ मत करो, छोड़ दो अभी उसको. अभी के लिए थोड़ा छोड़ दो, ठीक है. Okay. Now the formula for potential difference. Potential difference का formula है V is equal to W by Q. Potential difference between two conductors is equal to work done in transferring a unit positive charge from one conductor to another conductor. ये इसका theoretical definition है, क्योंकि कभी भी तुम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते. यू ऑलवेज एंड अप ट्रांसफरिंग नेगेटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर द वंस विच फ्लो, प्रोटॉन्स डू नॉट फ्लो. ठीक है, बट दिस इज अ थियोरेटिकल डेफिनेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड. कन्वेंशनल डेफिनेशन से ये, ठीक है. बट ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला, इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें नई डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है. Potential difference is the work done in transferring a unit charge from one point to another point in a circuit, basically. So potential difference का जो symbol है, that is capital V. इसका जो formula है, that is W by Q, work done upon charge. ठीक है. work done का unit क्या है? SI unit. work joule. Q का SI unit क्या है?
ठीक है। सो तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। एम्पियर तो करंट का था, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट का सिंबल क्या है, वी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल और पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट का सिंबल दोनों वी है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, बस और कुछ नहीं। जो थियोरेटिकल डेफिनेशन दिया है वही याद रखना है। अच्छा, कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इजी है डिफाइन करना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in a circuit or between 2 conductors is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in transferring 1 coulomb of charge from one point to another point in that circuit। मतलब अगर मुझे 1 coulomb चार्ज को ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और वो ट्रांसफर में मुझे 1 जूल ऑफ वर्क लग रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का, एंड रेजिस्टेंस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है, बट ये रेजिस्टेंस का कॉज क्या है इसको समझो। सो सपोज आई हैव गॉट अ मेटालिक वायर, ठीक है, थोड़ा जूम करके बताता हूँ। सपोज आई हैव गॉट अ मेटालिक वायर, ये मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उसको, है ना। और क्या क्या होगा मेटालिक वायर में, देयर विल बी पॉजिटिव न्यूक्लियाई, पॉजिटिव न्यूक्लियाई एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सब कुछ होगा, न्यूक्लियस भी होगी। Whenever the potential difference is applied across the ends of the conductor and these electrons starts drifting from positive to negative terminal or negative to positive, wherever you want to call, from higher potential to lower potential, then they will be obstructed, or their flow will be obstructed by the stationary positive charges, that is the nuclei of metallic atoms। जो मेटल के एटम्स की न्यूक्लियस है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेगी, तो वो रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो अपना रास्ता चेंज करेंगे एंड दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम सम अदर पाथ। सो दे विल गो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, बट दे विल नॉट गो लाइक स्मूथली, देयर flow will be continuously obstructed, and so they will move with the continuous obstruction to their flow, और यही ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सो कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथ नहीं होता है, चाहे वो सिल्वर ही क्यों ना हो, बिकॉज सिल्वर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर द नेक्स्ट बेस्ट, बट उनमें भी रेजिस्टेंस होता है। बट एज यू गो टू फ्रॉम बेस्ट कंडक्टर टू गुड कंडक्टर टू ओके कंडक्टर टू बैड कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। डू यू नो an alloy named nichrome? What is nichrome made up of? Nichrome is made up of nickel and chromium. So nichrome is supposed to be a resistor. Resistor matlab it offers a lot of resistance, and nichrome coil or nichrome wire is used for heating elements. Heating elements are used in heaters, इलेक्ट्रिक हीटर्स, गीजर्स, वहां पे ये यूज होता है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कम है, और दूसरे जो स्टेशनरी न्यूक्लियस और एटम्स है नाइक्रोम के वो बहुत ज्यादा है। सो दे कंटिन्यूसली ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा।
ठीक है. सो द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय स्टेशनरी पार्टिकल्स. इसको याद रखना. सो दे हैव एक्सप्लेन्ड लाइक दिस. Okay, then there is Ohm's law. So there was this scientist called George Simon Ohm. इसका सरनेम था ओम, OHM. ठीक है. He was I think he was Austrian. George Simon Ohm. Some people say that he was German Austrian maybe, neighbors. तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक लॉ दिया था which related the three major quantities of electricity, that is resistance, voltage and current. Resistance, voltage and current, they are related with the help of Ohm's law. Ohm's law states that resistance is the ratio of voltage and current. ये जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि जितना वोल्टेज ज्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा. उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा. जितना करंट ज्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा. जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा. मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. ये जो रिलेशनशिप है ये ओम्स लॉ बोलते हैं इसको. सो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है. शायद कोई न्यूमेरिकल आ सकता है. ऑल्दो इस ओम्स लॉ के ऊपर जो मैक्सिमम पार्ट है वो 10th में है. यहाँ पे जस्ट उसको एज अ यू कैन से जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तुम्हें बताया. ओके, सो ये जो रेजिस्टेंस है उसको भी मेजर कर सकते हैं. ये इट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी. रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है दैट इज ओम, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु गेव इट्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम. और ये ओम का एक सिंबल है विच इज ओमेगा, ग्रीक लेटर ओमेगा. मैंने पहले भी ग्रीक लेटर्स की बात की है तुम्हारे साथ. ये और एक ग्रीक लेटर है विच इज द सिंबल ऑफ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का सिंबल R है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है, ओम का सिंबल ओमेगा है. ठीक है. सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. R की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओम, V की जगह 1 वोल्ट, I की जगह 1 एम्पियर, और 1 ओम को हम डिफाइन कर सकते हैं. So the resistance of a conductor is said to be 1 ohm when a potential difference of 1 volt is applied across its ends and the current flowing through the conductor is 1 ampere. मतलब किसी कंडक्टर में किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 1 वोल्ट का और उसकी वजह से उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम. So that is the idea behind resistance. Then there are some factors affecting the resistance. The first factor is material of wire. वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है. मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया सिल्वर, कॉपर और नाइक्रोम का. सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें रेजिस्टेंस कम होता है. नाइक्रोम is not so good conductor, उसका resistance बहुत ज्यादा है. It is used as a heating element to produce heat deliberately. So of course material अगर change होगा तो resistance change होगा. Then length of wire. Length of wire पे resistance कैसे depend करता है? जितना length ज्यादा उतनी resistance ज्यादा. So resistance is directly proportional to the length. जितनी लेंथ ज्यादा उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए. जितना शॉर्ट वायर होगा रेजिस्टेंस कम होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मतलब थिकनेस, थोड़ा सा अजीब है ये. नाउ इफ यू लुक एट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये थिक वायर है और मैं यहाँ पे एक थिन वायर भी ड्रॉ करता हूँ. ठीक है. थिन वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, सो देयर इज वेरी लेस स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो
on its surface. स्पेस कम हो जाती है, थिक वायर में स्पेस ज्यादा होती है, सो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है. सो इफ यू वांट अ लो रेजिस्टेंस वायर यू शुड टेक अ थिक वायर. थिन वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. If the thickness is more, resistance is less. If the thickness is less, resistance is more. I don't know whether you'll be able to remember all this. And temperature, last quantity on which resistance depends. If the temperature increases, resistance will be very high. And if the temperature is less, the resistance will be less. क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ना, वायर के अंदर जो पार्टिकल्स है दे स्टार्ट्स मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, सो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डोंट लेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली. सो टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. इफ द टेम्परेचर इज लेस, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लेस. Okay, so that's the second part of the chapter, and the last part is efficient use of energy. Efficient use matlab to reduce the cost and amount of energy to be used, provided to provide us the various products and services. जैसे मैंने AC यूज किया यहाँ पे और मैं वो दरवाजा खुला रखता हूँ तो क्या होगा, ठंडी हवा बाहर जाएगी, तुम्हें ठंड मतलब अच्छा कंफर्टिंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा और उसकी एनर्जी पूरी वेस्ट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके बताएं कि घर को प्रॉपरली इंसुलेट करो तो कंफर्टेबल टेम्परेचर रहेगा अंदर. खिड़कियां खुली रख के एसी चालू रखोगे तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है, उसके बाद घर के अंदर स्काईलाइट यूज करो रादर देन बल्ब्स. अब यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, बट देर आर सम हाउसेज वेयर इट्स पॉसिबल टू हैव बिग विंडोज, तो नेचुरल लाइट आएगा तो तुम लाइट का यूज कम करोगे, आर्टिफिशियल लाइट का, दैट विल सेव एनर्जी. फिर एलईडी का यूज करो, एलईडी का यूज एनर्जी और सेव करता है, एलईडी इज मच मोर एनर्जी एफिशिएंट. फिर रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, ओवन, स्टव्स, ये जो मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस है they will use significantly less energy than older appliances. मतलब तुम्हें older appliances को replace करके new appliances का use करना चाहिए जो कम energy consume करते हैं. फिर building का location और surrounding बहुत key role play करता है in regulating its temperature and illumination. Proper placement of the window and skylights and the use of architectural features that reflect light into the building can reduce the need of artificial lighting. White roof systems can save more energy in summers. The use of advanced boilers and furnaces in industry can save sufficient amount of energy in attaining high temperature by burning less fuels. Use of such technologies is more efficient and less polluting. ये हमने heat and energy chapter में भी ऐसे सारे ideas देखे थे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए. Fuel efficiency in the vehicles can be increased by reducing the weight of the vehicle using advanced tires and computer controlled engines. According to the International Energy Agency, the improved energy efficiency in buildings, industries, and transportations could reduce the world's energy need in 2050 by 1/3, and thus it can help in control of global emission of greenhouse gases. Again, comes to the same thing. सोशल इनिशिएटिव्स के बारे में बात की है कि कैसे पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है बाय यूजिंग. हैव यू सीन दैट NMMT has introduced electric buses? They look so nice, huge windows and no sound when they pass by. You can't hear any sound because there is no diesel engine, and it reduces pollution, greenhouse emission. It is same efficiency, in fact more efficiency. So energy is saved in such social initiatives, and there are some more information given here. Yeah, so that was your chapter, electric current. ठीक है, so छोटा है chapter but important है. काफ़ी सारे terms है second part में खास करके जो तुम लोगों को बताए हैं. Now there is this chapter magnetism. I am not sure, 15 minutes maybe
हाफ एन आवर है मेरे पास, मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगा, बट आई कैन गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज मैग्नेटिज्म. So let me just stop this recording first.